Hello students, welcome back for your new chapter number 2, human resource planning. Today we are starting this chapter. लास्ट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਨੀਡ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਫੀਚਰਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਐਸੈਟ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੇਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫਿੰਗ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਕੋਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਸੈਟ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੈਟ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਸੈਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लैनिंग प्रोसैस। ये अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ, ਵੈਨ ਟੂ ਡੂ, ਵੇਅਰ ਟੂ ਡੂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਔਰ HR ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਟਰਮਿਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ which a management determine how an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position, and through the planning a management strives to have the right number and the right kind of people at the right places at the right time to do the things which result in both the organization as the individual receiving the maximum long range benefit। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ, ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ, ਰਾਈਟ टाइम, वो सब कुछ डिसाइड करती है क्योंकि किन्ने मैंबर्स की लोड़ है, किस जगह पर अपॉइंट करना ज़रूरी है और किस टाइम अपॉइंट करना है, हर चीज़ ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी हायर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं और इंडिविजुअल सैटिस्फैक्शन भी मिल जाती है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एनी ऑर्गेनाइजेशन और टू गेट द रिजल्ट्स, ठीक है।
हुण इस प्लैनिंग के की फीचर्स ने, ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग के फीचर्स की ने। सब तो पहला फीचर आता है वैल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। सब तो पहला आपां नूं वैल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, टारगेट होंगे जो असीं अचीव करने होंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द स्ट्रैटेजिक प्लैनिंग एंड द ऑपरेटिंग प्लैनिंग मेड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग। सब तो पहला देखो, अगर साडा मेन ऑर्गेनाइजेशन गोल है कुछ भी अचीव करन दा, तो उहदे अंदर ही अगर असीं स्ट्रैटेजी तैयार करनी है तो उस स्ट्रैटेजी दे विच ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग दा ऑब्जेक्ट भी सैट होना ज़रूरी है। कि ह्यूमन रिसोर्स दे विच मतलब एक प्लैंड बेसिस होने चाहिए ने कि कंपनी नूं किन्ने रिसोर्सिस की लोड़ है, उन्हां नूं अपडेट करन दी लोड़ है, उन्हां दी ट्रेनिंग की लोड़ है, उन्हां दी करियर प्लैनिंग, ठीक है, हर पीपल दी उन्हां दी जिहड़ा गुड एटमोसफेयर, अपडेटिंग, हर चीज़ की प्लैनिंग होनी ज़रूरी है। तो अपने वैल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि असी अपने रिसोर्सिस दे लई की करना है। नंबर 2, डिटरमिन द पर्सनल नीड्स। जो अपने इंप्लॉइज़ ने उन्होंने नीड्स का भी ध्यान रखना पैंदा है। अगर असीं अपने इंप्लॉइज़ तो काम लैना है तो उन्होंने नीड्स को भी बराबर आपां नूं ध्यान दे विच रखना पैंदा है। और भी आपां नूं ये सोचना पैंदा है, पहलां तो ही सोच के रखना है कि कोई भी परसन अगर ऑर्गेनाइजेशन दे विच आंदा है तो अपने किहड़ियां ज़रूरतां नूं ऑर्गेनाइजेशन दे विच लैके आंदा है। नंबर 3, हैविंग द मैन पावर इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होंदा स्टॉक, ठीक है। तो आपां नूं अपना मैन पावर इन्वेंटरी तैयार रखनी पैंदी है कि एकदम अगर आपां नूं मैन पावर की लोड़ पैंदी है तो असीं कितनी मैन पावर जिहड़ी है एकदम लै सकते हैं, कितनी नूं आपां रेडी कर सकते हैं और सही परसन नूं सही प्लेस ते किवें असीं अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी काम के लिए आपां नूं एकदम सप्लाई ज़्यादा चाहिए है तो उहदे लई डिमांड, अगर डिमांड अपनी ज़्यादा है तो सप्लाई कित्थों होएगी, अपने कोल सही जिहड़े क्योंकि एकदम एमरजेंसी अगर आप लभदे हैं तो कई बार कैपेबल कैंडीडेट्स आपां नूं नहीं मिलते। तो कैपेबल कैंडीडेट्स के लिए दा ध्यान रखना और ये एफर्ट्स करते रहना, पहले ही प्लान दे विच रखना कि अगर असीं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं या कुछ भी अनवांटेड कंडीशनस अपने अगे आ जांदियां ने तो उन्हां दे टाइम अपनी सप्लाई नूं किस तरह कंप्लीट करना है। एंड द लास्ट वन इज़ क्रिएटिंग द प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट। अपने इंप्लॉइज़ नूं अच्छा एटमोसफेयर देना ताकि वो भी अपने काम नूं परफेक्टली और एफिशिएंटली कर सकन, ठीक है बेटे। ये है थोड़े फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग। और नैक्सट जोड़ा है दैट इज़ अ नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग। देखो जिस तरह बाकी चीज़ां ज़रूरी ने उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उहदे विच ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग दे विच सब तो पहला पॉइंट आता है नीड का कि डिटरमिन द नंबर ऑफ परसन टू बी इंप्लॉयड एट अ न्यू लोकेशन। तो ये डिटरमिन करना कि आपां नूं किन्ने नंबर ऑफ परसन की ज़रूरत है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए सानू ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग करनी ही पैनी है। तो सही नंबर ऑफ परसन, ना ही ओवर ना ही अंडर। ओवर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए, अंडर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर स्टाफिंग होंदी है तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ती है और इंप्लॉइज़ अंडर यूटिलाइज होंगे ने। अगर अंडर स्टाफिंग होंदी है तो उहदे नाल बाकी सारे ओवरऑल वर्कलोड बढ़ जाता है, स्ट्रैचिंग होंदी है इंप्लॉइज़ की, तो अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं कर पाते। तो इस करके ऑर्गेनाइजेशन दे विच HR प्लैनिंग इसीलिए ज़रूरी है कि असी सही नंबर ऑफ जोड़े इंप्लॉइज़ हैं उन्होंने डिटरमिन कर सकीए और कितनी रिक्वायरमेंट है उन्होंने असी किवें कंप्लीट करिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सैकेंड इज़ रिटेनिंग द हाईली स्किल्ड स्टाफ। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है और ये एक पार्ट भी है, एक की फैक्टर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सैसफुल होंदी है अगर वो जोड़े इंप्लॉइज़ ने स्टाफ है वो वैल क्वालीफाइड वैल स्किल्ड होवे और जिस परपज़ लिए आपां उन्हां नूं रखना चाहते हैं उन्हां दे विच वो चीज़ होनी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मॉनीटर करना कि हाईली स्किल्ड स्टाफ है, एकदम एमरजेंसी आपां हाईली स्किल्ड स्टाफ अवेलेबल नहीं करा सकते, तो उस चीज़ के लिए आपां नूं पहलां तो ही प्लान करना पैंदा है। सारे मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनस के नाल लिंक रखने पैंदे ने और जिहड़े अपने वैकेंसी एक्सचेंजिज ने, ठीक है, जो आपां नूं एम्प्लॉइज़ प्रोवाइड करांदियां ने उन्हां नाल लिंक रखने पैंदे ने, ठीक है। और ज़रूरत पैन ते उन्हां कोलों जदों भी चाहिए असीं अपने इंप्लॉइज़ लै सकते हैं और आपां नूं एफिशिएंट स्टाफ जिहड़ा है वो मिल जाता है। इस करके ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नंबर 3 मैनेजिंग द एंड इफेक्टिव मैनेजिंग द एंड इफेक्टिव डाउन साइजिंग प्रोग्राम्स। ये बेटा जी देखो की आऊगा डाउन साइजिंग प्रोग्राम कि एंड ऑल टू कॉमन इशू फॉर द मैनेजर इज़ हाउ टू वर्कफोर्स कैन बी कट
पेनलैसली, मतलब अगर आप शॉर्ट भी करना है तो असी बिना कोई किसी को तंग किए या बिना तकलीफ दिते असी आप उन्होंने किवें मैनेज कर सकते हैं, किवें कट कर सकते हैं, ठीक है। और ये लिए अ क्वेश्चन मेड ऑल द हार्डर बाय द टाइम प्रेशर मैनेजमेंट इज़ अंडर, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जिवें हुण ये वाला पीरीयड आया है कि सारी सोसाइटी ही बहुत ज़्यादा औखे टाइम के विचों निकल रही है कोरोना करके, हर वर्कलोड मतलब फंड्स की सबनों कमी है, तो सब ने अपने इंप्लॉइज़ को कट ऑफ किया है, उन्होंने सैलरीज़ को कट ऑफ किया है, तो उहदे लई भी पूरा डाउन साइजिंग प्रोग्राम्स बनाने, पूरा उन्होंने दोबारा तो सारा रीप्लैन करना, ये सानू ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग की लोड़ है, ठीक है। सो अपने वर्कर्स को सॉर्ट आउट करना इस तरीके दे नाल कि जो भी सानू लोड़ पवे असी उन्होंने दोबारा तो अपॉइंट कर सके, दोबारा तो अपन परसनस मिल सकन, ठीक है। ये अपना नैक्सट एसेंशियल पार्ट है। एंड द फोर्थ वन इज़ वेयर विल द नैक्सट जनरेशन ऑफ द मैनेजर्स कम फ्रॉम, कि जेडे आपां अगले जनरेशन मैनेजर्स चाहिए ने आपां कित्थों मिलणगे, ठीक है। उहदे लई असी पहलां तो ही अपनी प्लैनिंग करके रखते हैं, करियर प्रोग्राम्स चलाने हैं, अपने इंप्लॉइज़ को वैल एजुकेशन दिंदे हैं कि अगर कोई भी परसन किसी टाइम आपां नूं छड्ड के चला जाता है तो उहदी जगह लैण लई कोई भी परसन तैयार होवे, मतलब आप पहलां अपनी एक टीम तैयार रखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट करियर सिस्टम उहदे विच असी जो अज दा है उन्होंने इंप्रूव करना, मूवमेंट करना, प्रमोशनस करना, ये सारे प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम उन्होंने डेवलपिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। और ऑफिस बनियो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर टैलेंट सर्च के प्रोग्राम्स असी करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के लिए जो आप रिक्वायरमेंट सिलेक्शन करनी है या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने हैं, अब इन्ह सब चीज़ों को करने के लिए आपां ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दीज आर द बेसिक नीड्स for an organization, for the planning of organization and or to make the strategies। अगर इन्ह स्ट्रैटेजीज़ को असी सक्सैसफुल बनाना है तो उहदे लई ह्यूमन रिसोर्स प्लैनिंग भी एक बहुत ही वड्डा की फैक्टर है, ठीक है बेटा। ये वाली वीडियो को तुसीं ध्यान नाल सुनो तो समझो और मैसेज करया करो, फीडबैक दिया करो। अगर कोई सुजैशन है तुसीं वो भी दे सकते हो। नैक्सट वीडियो नाल आपां फिर मिलते हैं। टेक केयर।